खबर है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार ने सारी मर्यादा को ताक पर रखते हुए विधानसभा में रेप को लेकर अभद्र टिप्पणी की। शीतकालीन सत्र में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष से रमेश कुमार ने कहा कि आपकी स्थिति उस कहावत की तरह है कि रेप को रोक नहीं सकते तो लेटकर उसका आनंद लीजिए। कांग्रेस के नेता राज्य में बारिश से हुए नुकसान पर बोलने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागड़ी उसको टालने की कोशिश कर रहे थे। अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि जैसा चल रहा है चलने दें और स्थिति का आनंद लें। मैं व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता। अध्यक्ष की ओर से इतना कहने पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने उनको जवाब देते हुए कहा कि एक कहावत है कि जब दुष्कर्म अपरिहार्य हो तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। आप ठीक इसी स्थिति में हैं। विधायक का ये बयान उस दिन आया, आपको बता दें, भारत जैसे देश में जब महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और अजीब तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ होती रहती है। और ये बयान जो विधायक के बिगड़े बोल हैं वो उस दिन आया जब निर्भया जैसी दर्दनाक घटना को 9 साल पूरे हुए। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ये वीडियो हमने आपको सुना है, अपने वीडियो में भी देखा हो किस तरीके से यही विधानसभा हो, चाहे सदन हो, संसद हो, यहाँ से कानून निकलते हैं और कानून हर तरीके के होते हैं महिलाओं की सुरक्षा से लेकर। लेकिन जब ऐसे सदन में इस तरीके की टिप्पणी की जाए, वो भी जो कानून बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर शर्मसार कर देने वाला होता है। आपको बता दें कि टाइम्स नेटवर्क के दीपक बोपन्ना ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता रमेश कुमार और कर्नाटक के स्पीकर जो हैं उनसे दोनों से बातचीत की। कांग्रेस विधायक ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो वहीं स्पीकर ने इस पर बात करने से इनकार किया। You said when rape is inevitable, it's better to lie down and enjoy it. It is only a saying, that's all. Speaker said, I am enjoying it. I am lying down and enjoying it. I just told him this proverb, that's nothing. But don't you think it was wrong to say it and it was trivializing, the offense? No, you people can sensitize over anything. You say you are experts in that in the country. We salute you for your greatness. Well, I don't want to comment about it. No, but you say we are human beings. Sir? No, we are human beings. It was in the course of this thing casually said, you say, but the offense is not definitely it's all right. casual. You are at liberty to draw your inference. We are incapable of replying to your comments. You don't find anything important in the assembly. No, but this is a grave offense. It's a grave offense. Yes. What is a saying? I only said about a saying. I said there is a proverb in English. Nothing more than that. So you think it was right to make a comment like that? I don't feel it is wrong. If you feel so, you are at liberty to do that. Thank you very much. I don't want to talk further about it. Thank you, sir. Thank you. No, I don't want to comment anything. So, when you didn't try to stop him at that point in time, and it's a very serious offense which was trivialized in the assembly, sir. And, you along with several other legislators burst into laughter when he makes a statement like that. No, I don't want to comment. Yes, he is a very senior member. Yes, sir. Yes, express his opinion. Right. So, but do you think it was right, sir, to make an opinion like that or make a statement like that? No, I don't want to comment. Right, sir. Thank you. सब कुछ बारीकी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ स्पीकर ने कहा, क्या विधायक का कहना था जब उनसे बातचीत की गई। अब आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद उनकी तरफ चारों तरफ से उंगली उठनी शुरू हो गई है, जो लाजमी है। एक्टिविस्ट निश्चित तौर पर विधायक को बर्खास्त करने की मांग उठा रहे हैं, तो वही महिला आयोग ने इस तरह से महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी को भयानक मानसिकता करार दिया है। Women's bodies cannot become battlegrounds. Rape cannot become an issue that elected representatives trivialize, make fun of. Aren't you ashamed of yourself?
I hope the Congress president would suspend this fellow who made a joke of rape. Absolutely unacceptable. You think rape is a joke? I'm not covering my face because I want to or because it's COVID-19. Because I'm afraid of the men that you might have inspired today with your speech and that might come down looking for me. I'm afraid to step out of my house because of men in power like you. It's a shame. In a country where you're talking 24/7 about Beti Bachao, Beti Padhao, and women being the goddesses and what not, if that is what you want us to do, lay back and enjoy, we will vote you out. And that's when I would like to see how you would lay back and enjoy. और इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा हेबाले इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं बेंगलुरु से। नेहा, सबसे पहले तो जब हमारे सहयोगी ने विधायक से बात करनी चाहिए तो वो बोले कि आप लोग फ्री हैं इस तरीके के मुद्दों को उछालने के लिए, और सदन में सभा में और भी कई जरूरी बातें हुई जिसको आप लोगों ने उजागर नहीं किया, तो निश्चित तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कहाँ उनको माफी मांगनी चाहिए थी। माफी मांगने की बजाय किस तरीके से उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत की। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए इनफैक्ट एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग जो यहाँ पे अभी इनफैक्ट बात आ रही है। जब कर्नाटक की असेंबली के बारे में बात किया जाए तो ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने पहले भी बहुत बार इनफैक्ट रेप को बहुत ट्रिवियलाइज किया है और उसको ऐसे मतलब एक लाफिंग मैटर बना दिया है, एक जोक बना दिया है ये पूरे मैटर का। और इस बार भी अगर हम आपको बता दें, जैसे आपने सुना कि रमेश कुमार ने मेरे कलीग दीपक से जब बात किया था हमारे संवाददाता से, तो उन्होंने यही कहा कि आपको इसके बारे में जो बनाना है, आपको जो इन्फर करना है आप कर सकते हैं। माने कि ये कि अभी भी जहाँ पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसे कि 2019 में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था काफ़ी बयाल बच गया था, अभी भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि कैसे वो बिल्कुल भी माफ़ी मांगने की तो बात ही दूर, इनफैक्ट वो अभी भी ज़रा भी उनमें इनफैक्ट ये शेम नहीं है कि ऐसे फ्लोर पे जहाँ पे इतने सारे विधायक बैठे हैं, वहाँ पे इतने सारे एमएलएज हैं, और ऐसे टाइम पे एक स्टेटमेंट ऐसे बनाना तो इनफैक्ट छोड़ दीजिए, सोचना भी नहीं चाहिए। और ऐसे टाइम पे इतने सारे लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, एमएलएज जो है इनफैक्ट वो भी साथ में हंस के ऐसे ये पूरे मैटर का, ये पूरे मामले का इनफैक्ट एक मजाक उड़ा रहे हैं, जो इनफैक्ट आपने सुना कि अभी विमेन एक्टिविस्ट ने भी जो बोला है कि ऐसे टाइम पे उनको फ्लोर ऑफ द असेंबली पे अगर ऐसे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उनको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये कांग्रेस एमएलए ही नहीं, लेकिन स्पीकर ने भी अभी इस पे बिल्कुल वो भी इस पे चुप ही बैठे हैं। उन्होंने भी यही बोला कि उनको इस पे कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। और क्यों? ऐसे टाइम पे जब स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जब उनको असेंबली को इनफैक्ट डेकोरम मेंटेन करना चाहिए असेंबली में, तो उनका भी ऐसे टाइम पे नो कमेंट्स बोलना बिल्कुल भी सहमत नहीं होना चाहिए।